دیوانیاں نوں کدی پروائے نالے یسوع دے ساڈی فتح ہے نالے یسوع دے ساڈی فتح ہے تے کیوں نہ مل میں دنیا تے کیوں نہ مل سب سے پہلی بات جس کے نقشے قدم پر ہم چلتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اسی کی ذات کی نسبت سے ہم بہت سارے بیانات، جیسے ابھی پادری صاحب نے عقیدہ بلوایا، اس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، خداوند یسوع مسیح کی موت، خداوند یسوع مسیح کی قیامت، خداوند یسوع مسیح کا صعود اور اس کی آمد ثانی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جسے ہم معجزات کا خدا کہتے ہیں، اگر خداوند یسوع مسیح کی ذات کے معجزات دیکھیں تو اس میں 4 معجزات ہیں جسے ہم عظیم معجزات کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا خداوند مسیح کا تجسم، اس دنیا میں آنا، جسم کو اختیار کرنا، بغیر گناہ اور بن باپ کے پیدا ہونا، یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد اس نے خود یہ دعویٰ کیا کہ میں مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ یہ دوسرا عظیم معجزہ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پچھلے دنوں ہم نے ایسٹر منایا، اور ہم مسیحوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ ایسٹر کے منانے والے ہیں، اسی لیے ہم ہفتے کے پہلے دن عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اتوار والے دن خداوند مسیح زندہ ہوا۔ اور تیسرا معجزہ جو ہے وہ ہے آسمان پر اٹھایا جانا۔ کچھ کہتے ہیں کہ آسمان پر اٹھایا گیا، مگر اس کی شکل گتسمنی میں ایک کوئی کوٹھڑی تھی، وہاں مسیح دعا کر رہا تھا، باہر شاگرد تھے، اور جب یہودا اسکریوتی گیا، اس نے جا کر بوسہ دیا تو وہ اس کی شکل بن گئی، اور مسیح آسمان چھت کھل گئی اور آسمان پر اٹھایا۔ کچھ کہتے ہیں پہاڑ پر جس پہاڑ پر خداوند مسیح اٹھایا گیا، وہ دھند تھی، دوسری طرف چلا گیا، اور پھر ادھر کشمیر میں رہنے لگا، 120 سال کی عمر پائی، وہاں شادی بھی کی، اولاد بھی کی۔ یہ غلط نظریہ بھی ہے۔ اور تیسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ اس کی شکل کا کوئی آدمی تھا جو خدا نے اس کی شکل کا دیا، وہ صلیب پر چڑھ گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی ہم نے جو آیت پڑھی، فرشتے کہتے کہ جس طرح تم اس کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اسی طرح وہ دوبارہ آئے گا، اور خداوند یسوع مسیح کا جو صعود ہے، آسمان پر اٹھایا جانا ہے، وہ دیدنی ہے۔ خداوند بدنی طور پر، دیدنی طور پر آسمان پر اٹھایا گیا، اور نہ صرف شاگردوں نے بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اور بھی جماعت تھی، تقریباً 500 کے قریب لوگ جو دیکھنے کے لیے آئے، اس پہاڑی کے گلیل کے پہاڑی کے ارد گرد چوگرد جمع ہو گئے۔ آج دیکھیں آج کس طرح وہ خداوند مسیح نے کہا کہ میں آسمان پر اٹھایا گا۔ مسیح کا تجسم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک
फुरतन सा बच्चा जो चर्नी में पैदा होता है, मगर जब आसमान पर उठाया जाता है तो वो जलाले बदन में फाते हैसियत से, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा दम कहाँ रहा। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाया जाता है और खुदावंद मसीह यहाँ पर भी इस दुनिया में जब आया तो एक खिदमत थी, और खिदमत क्या थी? हम गुनहगारों के लिए अपनी जान सलीब पर दे, हमें बचाए, हमें दुखों बीमारियों से रिहाई बख्शे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। और उसके बाद आसमान पर भी इसलिए गया कि वहां भी जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और दूसरा काम बतौर सरदार काहिन के इब्रानियों के खत में लिखा है, बाप के दैनी हाथ खड़ा हमारी क्या करता है? शफायत करता है, हमारी शफायत करता है। इसलिए हम उसके वसीले से दुआ मांगते हैं। सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बाप हम मांगते हैं। तो हमारी शफायत कौन कर रहा है? कोई और इंसान नहीं कर रहा है। और इस सऊद की तस्दीक के लिए, क्योंकि इसको हम मसीह पहले इतना नहीं समझते, अहमियत देते थे, और बाद वक्त हमारे ज़हनों में भी फर्क सवाल आ जाते थे, और हमारा ईमान सिर्फ यही बात पर थी कि वो खुदा का बेटा और जिंदा है। मगर इस बात को समझना निहायत ज़रूरी है कि वो बदनी तौर पर, दीदनी तौर पर, रूहानी तौर पर नहीं, ज़ाहिरी तौर पर जिसे लोगों ने देखा और खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। और पाक नविश्तों में खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोई मौजूद है। ज़बूर 68 उसकी 18वीं आयत में लिखा, तूने आग में बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। 110 ज़बूर कोई पढ़े, ज़बूर 110 और पहली आयत। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना करूं। किसने कहा? किसको कहा? मेरे खुदावंद को। यहोवा ने खुदावंद को क्या कहा? तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। और ये दाहिने हाथ बैठना भी कोई इसलिए इख्तियाराती तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। स्टिफनेस पहला शहीद जब शहीद हुआ, शहीद हो रहा तो वो क्या कहता है कि मैं यीशु को बाप की दाहिने हाथ बैठा देख रहा। यानी यहाँ यहोवा खुदावंद को कहता है कि तूने बाप की मर्जी को पूरा किया, तूने इन इंसानों जिनसे खुदा बहुत मोहब्बत रखता है अपनी जान कुर्बान की, तूने आसमानों को छोड़ा और जमीन पर आ गया और इंसानों के मुशाबे हो गया। तो खुदा कहता है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। लूका 9 बाब और उसकी 11वीं 51 है। जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी। जब वक्त नजदीक आने लगा, ये जी उठने की बात नहीं हो रही, सलीब चढ़ाए जाने की बात नहीं, उससे भी पहले ये बात है। ये पेशन गोई है कि जब यीशु का ये वक्त नजदीक आने लगा कि वो आसमान पर उठाया जाए, तो उसने यरूशलेम की तरफ कमर कस ली। मगर शागिर्दों को वैसा ही लगता था जैसा मसीह अपनी मौत के बारे में कहता था। वो लोग समझ नहीं रहे थे, बार बार समझाया,
बार बार खुदा यीशु मसीह जी उठने का कहते थे मरने के बाद, वो नहीं समझ आ रही थी उनको। इसी तरह क्योंकि ये फितरत के खिलाफ बातें हैं, तो आम इंसान की उस वक्त समझ में ये बातें नहीं आती, मगर खुदा यीशु मसीह ने उन्हें समझाया। अब सवाल ये है, 40 दिन बाद क्यों सऊद फरमाया? जी उठकर उसी टाइम भी तो आसमान पर जा सकते थे ना। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अगर शागिर्दों में या दूसरे लोगों में अगर कोई थोड़ा सा भी शक व शुबा है, तो वो ना रहे कि खुदावंद मसीह मुर्दों में से जी। तोमा पहले एतवार शाम ने सी ते तोमा आंदा नहीं, मैं नहीं मंगना जब तक मैं यीशु नू चंगी तरह ना देखना, हाँ, जब तक मैं उसके जख्मों को हाथ ना लगा लूं, मैं नहीं मनना। अगले एतवार फिर तोमा जब आया, तोमा ने आख्या भी देख ले, जख्म भी देख ले, पसली जेड़ा नेज़ा वजा हो जख्म तो भी हाथ ला, ते जदों उन्हें हाथ लाए तो फौरन उहदे मुंहों निकलिया है खुदावंद मेरे खुदा, यानी ओदा ईमान मजबूत हो गया। 40 दिन बाद सऊद फरमाने का बुनियादी मकसद ये था कि उनके ईमान को मजबूत किया जाए, और कोई भी अगर शक शुबा उनके अंदर है तो वो ठीक हो। और दूसरी बात जो थी 40 दिन, खुदा का ये खास मकसद था अपने शागिर्दों को सिखाना। अमाल पहला बाब 3 है, जरा पढ़े। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। 40 दिनों तक उनको क्या कहता रहा? नजर आता रहा, नजर आकर तालीम देता रहा। उनको अपनी मौत और मुर्दों में से जी उठने के बारे में खुदावंद यीशु मसीह वाज़े सिखाता रहा। और क्या लिखा है? सबूतों के साथ। कदों वो सोचते सी नहीं फिर रोटी भी नाल खाते भी चल, रू रोटी नहीं खाती है, रोटी भी नाल सबूतों के साथ, ताकि वो मसीह के अच्छे गवाह हो। जमीन की इंतहा तक मेरे गवाहों के साथ आगे आए थे, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब सऊद का अंदाज देखें, बड़ा खूबसूरत अंदाज। लूका 24 बाब 51 आयत में ये बिल्कुल तस्वीर वाज़े की गई, किस तरह खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते। जब उन्हें बरकत दे रहा था, तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। क्या कर रहा था? बरकत दे। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, चेलियां को बरकत दे रहा था, तो ऐसा हुआ कि उनके सामने आसमान पर उठाया गया। सारे ये देखी जाते रहता, बरकत दे रहा था, उनके लिए दुआ कर रहा था। ये खुदावंद यीशु मसीह के सऊद का अंदाज है। और इफ्सियों पहला बाब 20 आयत में भी पाक कलाम में खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। इफ्सियों पहला बाब 20 आयत, जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। और खुदावंद यीशु मसीह दीनी तौर पर, शख्सी तौर पर और बदनी तौर पर उसने सऊद फरमाया, आसमान पर उठाया गया। और इसी तरह दीनी तौर पर, शख्सी तौर पर और बदनी तौर पर दोबारा आए।
हालेलुया। वो उसकी तरह ही एमडी जो है, वो नाम मुझे पूरा नहीं आता, जिसने दावा किया था कि मैं मऊद मसीह हूँ। ये जो कादियानी है वो कहते हैं, इस तरह नहीं। जिस तरह शख्सी तौर पर, ये सादा सा नुस्खा ज़हन में रखें, बदनी तौर पर, दीदनी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया, फरिश्ते कहते हैं इसी तरह वापस आएगा। शख्सी तौर पर, दीदनी तौर पर, बदनी तौर पर उस वक्त 500 लोगों ने देखा, और कलाम में लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख, सारे देखेंगे, जिन्होंने छेदा था वो भी देखेंगे। मगर यीशु का दोबारा आना भी इसी तरह होगा जिस तरह वो आसमान पर बदनी तौर पर और शख्सी तौर पर उठाए गए। अब सवाल है कि सऊद की जरूरत क्यों महसूस हुई? उसमें बुनियादी बात यह है कि आसमान, इसीलिए पौलुस कहता है फिलिपियों में, उसने आसमान को छोड़ा और जमीन पर आ गया, यानी खुदावंद मसीह का असल वतन आसमान है, और अपने काम को पूरा करने के बाद वतन अपने वापस जाना जरूरी था। यूहन्ना 14 बाब 28 है, 14 बाब और उसकी 28 है, देखिए जरा। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और फिर अगर हम यूहन्ना 16वां बाब पूरा पढ़े तो इसमें यानी इस क्वेश्चन गोई का पूरा होना जरूरी था कि मैं बाप के पास वापस जाता हूँ। और ये यानी बड़ी बुनियादी बात हम अब आगे करते हैं। 10 दिन बाद कौन सी ईद आने वाली है? ईद पेंटिकोस्ट। मसीह ने कहा मैं जाता हूँ, ये मैं नहीं जाऊंगा तो पाक गुरु नहीं आएगा जो तुम्हारा मददगार होगा। इसलिए जरूरी था कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाए और पाक रूह को इस दुनिया में हमारे लिए भेजे, जो हमारे साथ हो, जो हमारा मददगार हो और जो हमारी रहनुमाई करे। यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत जरा पढ़े। यूहन्ना की इंजील 16 बाब 7 आयत। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मेरा जाना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? फायदेमंद है। साढ़े लिए जगह भी तैयार की। जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार। जगह का मतलब कॉलोनियां नहीं, जगह का मतलब सोसाइटियां वो नहीं। जगह का मतलब ये कि जेड़े जगह बापे आदम ते अम्मा हवा ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ। 16 ਜਨ तलवार ਦਾ ਪੈਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। यानी उस जगह मकाम वो जो खुदा ने इंसान के लिए रखा था वो खो दिया, और खुदा ने कहा कि तू मट्टी से लिया गया है, मट्टी में जाएगा। मगर मसीह कहता है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह, थोड़ा वही मर्तबा यहाँ तरबियत में जगह, थोड़ा वही मर्तबा मकाम दोबारा तो मैं बनाना चाहना कि हमेशा दी जिंदगी ते हमेशा खुदा दे नाल रहना है। ये फायदा ते दूजा फायदा मसीह फरमाते ने कि मैं जाता हूँ तो तुम्हारा फायदा होगा कि पाक रूह आएगा जो तुम्हारी मदद और रहनुमाई करेगा। हालेलुया। ये हमारे फायदे और बरकत की बात है। खुदावंद यीशु मसीह का सऊद फरमा जाना। और फिर चंद बातें, क्योंकि टाइम हो गया, मैं जल्दी से
नताइज के बारे में, सऊद के नताइज क्या है, इसके 4 बाब उसकी 8वीं आयत। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आदमी बादल पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमी को इनाम दिए। इसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाकों में उतरा भी। आलमी अरवा में उतरा, कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। नतीजा ये हुआ कि पहले जो ईमानदारों की रूहें आलमी अरवा खामोशी की आलम में रहती थी, ईमानदारों के लिए वो दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और अब ईमानदार जब इस दुनिया से रहमत करता है तो उसकी रूह बाप इब्राहिम की गोद में होती है, मसीह के पास होती है। आज ही मेरे साथ तू कहाँ हो बेटा, तुमको क्या लगा, फिरदौस में होगा। यानी पहला नतीजा ये सऊद की बरकत है पहला। और दूसरे नतीजा जो अभी हमने जिक्र किया कि खुदा का पाक रूह नाज़िल होगा। और इब्रानियों के खत में पहले बाब की 3री आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, पढ़े जरा। फजल और इत्मीनान, क़ुरान पढ़ना। 3री आयत। वो उसके जलाल का परतौर और उसके साथ का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की जा बैठा। बैठ का मतलब है सारा काम पूरा कर ले, गुनाहों को धोकर जेड़ा काम ही सारा पूरा करके उदे ही पता पैदा है ना, जो काम पूरा हो जाता है, काम मुका देता है। यानी सारा काम जिस मकसद के लिए खुदावंद मसीह आया, वह सऊद का फरमाने का नतीजा ये है कि उसने सारी जिम्मेवारी को पूरा किया और जाकर बैठ गया। बैठ जाने का मतलब है सारे काम को पूरा कर दिया, जिसमें हमारी निजात की किसी तरह की भी कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं है। और फिर मसीह का सऊद फरमा जाना, खुदा की दाहिनी हाथ खड़े होना, ये समझने वाली बात है। साडा यीशु जिन्हें साडे लिए जान दी थी, जिन्हें साडे लिए खून बहाया, वो बाप की दाहिनी हाथ खड़ा होते सानू डर कादा है, सानू दुआ दे विच दिलेरी मिलती। हालेलुया। हमें दुआ में इसलिए दिलेरी मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर है और बाप की दाहिनी हाथ खड़ा हमारी शिकायत करता है कि सानू किसे शायद कोई झाका नहीं हैगा, क्योंकि मसीह ने कहा कि राहत और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। दुआ च सानू दिलेरी होती है, सानू कोई शक नहीं होता। इसलिए असी कहने खुदावंद जेड़ी लिस्ट असा तेरे सामने रखिए, यीशु दे वसीले नाल कबूल कर ले। ये दिलेरी दी गल है कि यीशु शफायती है साडा, और यीशु उन चीज़ों को पूरा करता है। और आखिरी बात जो नतीजे की है उसका सऊद फरमाना, यानी फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे हो गई। पहला पतरस 3रा बाब ओदी 22 आयत पढ़ेगा। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबिया की गई हैं। फरिश्ते, इख्तियारात और कुदरतें क्या की गई हैं? उसके ताबे की गई हैं। और फिलिपियों के खत में लिखा है कि खुदावंद ने वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और हर एक ज़ुबान उसका इकरार करे और हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनके नीचे जो जमीन के।
اور ارشاد اعظم ہم جب ہم کہتے ہیں مسیح کا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو اور انہیں باپ اور بیٹے اور اچھا اب ہمارے لیے کیا سبب ہے؟ یہاں نتیجے پہ ہم آخری بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے وہ جلال پایا، کلام کہتا ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، کیا ہم اس جلال کا انتظار کریں پھر جھکیں؟ کیا مسیح کے آنے دوسری آمد کا انتظار کریں اور پھر جھکیں؟ نہیں، ہمیں خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، ہمیں اس کی عبادت اور پرستش کرنی ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے، جس طرح اس نے اس ساری کشش سکر کو توڑ کر آسمان پر گیا، اور اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے استقبال کی تیاری کرنی ہے۔ یہ زندگی جتنا وقت ہے نا، اب مسیح کی آمد کی انتظار، قیامت۔ غیر ایماندار جو ہیں اس نام سے ڈرتے، اگر آپ کا ایمان کمزور ہے آپ اس سے ڈریں گے۔ اگر آپ مسیح کی آمد کی تیاری کریں گے تو لکھا ہے کہ جدو نرسنگا پھونکا جائے گا ہم اڑ کر اس کا استقبال کریں، خوشی کریں، شادمانی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ پولس کہتا مردوں میں سے جی اٹھنے والا پلوٹا مسیح، اور اس کے بعد اس کے آنے پر اس کے لوگ وہ بدن جو یوحنا رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس وقت کیا کچھ ہوں گے، مگر اتنا ضرور جانتے ہیں اس کی مانند ہوں گے، یسوع کی مانند ہوں گے، جلالی بدن میں ہوں گے، جس میں نہ دکھ ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی تنگی ہوگی، نہ کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی۔ ہیلیلویا! تو میرے بچوں آئے ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ نہ صرف وہ جی اٹھا بلکہ وہ آسمان پر ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ ہمارا کاہن ہے، وہ ہمارے لیے جگہ تیار کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے راستے کھول دیے، اور ہم اپنی زندگی میں اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو اس کو خدا ان کے سامنے رکھیں، تاکہ جب یسوع آئے تو ہم اس قابل ہوں کہ اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہوں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔